Hello students, hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, would be your faculty for the subject that is financial markets and institutions. And the topic for today lecture is Introduction to Financial Markets and Financial Institutions. So in this lecture, we would cover the definitions of financial markets, financial institutions, and what are the different types of financial markets and financial institutions in India. So let's start. So first you can see the references from where the material of this PPT has been made. So first is your financial markets beginner module, National Stock Exchange. So this is one of the module which comes under NCMP, that is NSE Certified Market Professionals. Then second is Financial Markets and Institution, written by Mishkin and Ekins. Pearson Publication is the publication house. Third is Financial Institution and Services, written by Shalini Nigam. Excel Books Private Limited is the publisher. And last one is Dynamics of Financial Markets and Institutions in India. So that is written by Srivastava and Nigam, 2010. Excel Books is the publisher. So before starting with the two broad terms that is which are there in this subject, that is financial markets and institutions, first we would talk about financial system. So when we talk about financial system in India, so India में जब हम financial system को देखते हैं तो there is one ministry, that is Ministry of Finance. तो Ministry of Finance जो होता है वो takes care of the financial system, जिसमें बहुत सारे regulators हैं, बहुत सारे institutions हैं, financial institutions, and financial market is there. So regulators like RBI, Reserve Bank of India, SEBI, Security Exchange Board of India, IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, and then Pension Fund Regulatory Development Authority of India. So RBI regulator है जो rules formulate करता है, and financial institutions की बात करें तो commercial banks हैं. RBI is also one of the financial institution. Commercial banks जिसमें private, public, foreign, RRB, that is regional rural banks आ जाते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. फिर डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जिनका पर्पस होता है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे नबार्ड है, दैट इज फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो एग्रीकल्चर पे फोकस रहता है, रूरल डेवलपमेंट पे. दूसरा है सिडबी, दैट इज आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए फोकस रहता है. सो उनके लिए वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसे कहते हैं आपका है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. देन एनबीएफसीज, इन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. सो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, ये जैसे आपको हाउस लोन्स चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए तो वो सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. फिर दूसरा रेगुलेटर सेबी. सेबी रेगुलेट करता है जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट. उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस या भी जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आता है, आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस, उसको रेगुलेट करता है IRDA. एंड देन पेंशन फंड्स, पेंशन फंड को रेगुलेट करते हैं आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की, तो द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन. So आपका सेंट्रल बैंक इज द RBI, देन अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे हमने बात करी IRDA, सेबी, एंड देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, RRBs हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं इसमें. एंड देन मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं. So instruments and then payment and settlement system and a legal framework and regulators. So this is the definition of financial system. Now financial system की एक और definition हम बात करें तो the term financial system is a set of interrelated activities and services working together to achieve some predetermined purpose or goal. So एक predetermined आपका goal होता है या purpose होता है, और क्या goal है वो? That is economic transformation. So the financial system is possibly the most
important institutional and functional vehicle for economic transformation. So economic transformation के लिए, economic development के लिए financial system बहुत ज़रूरी है. और financial system क्या है? It is a set of interrelated services and activities. So जो सारी services provide करी जाती है आपको financial institutions के द्वारा, चाहे वो RBI हो गया, चाहे commercial bank हो गए, चाहे NBFC हो गए, चाहे mutual funds हो गए, चाहे insurance companies हो गई, और इन सब का पर्पस होता है दी इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर फाइनेंशियल सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो दो ब्रॉड टर्म आप यहाँ देख रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करना, जो भी आपकी सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करा जाए फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ. ये एक प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू सप्लाई फंड्स टू वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन सब सेक्टर्स को सप्लाई करना फंड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी इन वेज दैट प्रमोट द फुलेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इन सारी सेक्टर्स को या एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमी को, उनको फंड सप्लाई करना, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिस्टम का. The financial system has been identified as the most catalyzing agent for the growth of economy. So it is one of the important factor, or you can say agent, making it one of the key inputs of development. So हमने दो broad term यहाँ पर देखे, that is savings and investment. इसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम. तो हमें देखना होगा सेविंग्स क्या रहती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या रहती है. सो द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट. जो भी आपकी इनकम है उसको आप पार्टली स्पेंड करते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, एंड द रेस्ट सेव फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस. जो भी आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस हो गए उसके लिए आप सेविंग करके रखते हैं. तो सेविंग क्या है? सेविंग रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर योर करंट कंजम्पशन. तो जो आपकी करंट कंजम्पशन है उसके ऊपर जो इनकम बचती है, दैट इज योर सेविंग. सो टोटल सेविंग आर कंपोज्ड ऑफ, जो कंट्री की पूरी टोटल सेविंग होती है उसमें पब्लिक सेविंग होती है एंड प्राइवेट सेविंग. तो पब्लिक सेविंग होती है जो आपकी गवर्नमेंट की होती है, दैट इज कंस्टिट्यूट द सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड प्राइवेट सेविंग की बात करें तो जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं और जो बिजनेसेस हैं उनकी सेविंग्स. अब इन्वेस्टमेंट, हमें उन सेविंग्स को कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में. सो द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड द रेस्ट इज सेव्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस. सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर सेविंग्स, जो भी आपकी सेविंग्स है उसको आइडियल रखने की बजाय यू शुड इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटी. So इस चीज को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. So instead of keeping the savings idle, you may like to use savings in order to get some return on it in the future. So that is called your investment. So क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Why should one invest? One need to invest पहले तो earn return on your idle resources, generate a specified sum of money for a specific goal in life. अगर कोई particular goal है, after 7 years you want to buy a car, तो आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गोल के लिए. कोई अगर 10 इयर्स के बाद कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. एंड टू मेक अ प्रोविजन फॉर अनसर्टेन फ्यूचर, जैसे अभी चल रही है सिचुएशन, कोविड सिचुएशन. सो दिस इज वेरी अनसर्टेन. सो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी पहले, दे मस्ट बी इन बेटर पोजीशन देन दोज हु हैव नॉट इन्वेस्टेड. सो इसलिए अनसर्टेन फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट के बेसिक क्या रहता है? जो बेसिक रीजन रहता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वन नीड टू इन्वेस्ट, दैट इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. सो आपको भी पता है कि जो अभी प्रेजेंट जैसे 100 रुपीज है, सो 100 रुपीज में जो अभी आप चीज ले पा रहे हैं वो 1 साल बाद 100 रुपए में नहीं ले पाएंगे, वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगी. सो द मेन पर्पस इज जो आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको मीट कर सकें. सो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. सो द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड अ रिटर्न above the inflation rate to ensure that the investment does not decrease in value. For example, अगर annual inflation is 6%, then investment will need to earn more than 6% to ensure it increases in value. So obviously, जो आप अभी प्राइस जो जिस अमाउंट से ले पा रहे हैं जो कोई भी कमोडिटी, आप वो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा. सो यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट योर सेविंग्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वैल्यू. फिर सम ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यू शुड इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्दी करें, इन्वेस्ट रेगुलरली.
तो regular investment has to be there and invest for long term, not for short term. These are some of the golden rules of investment. So हमने दो जो मेजर टॉपिक थे आपके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बीच में लिंक जो होता है वो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है, और फाइनेंशियल सिस्टम में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं एंड फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब आपने जो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करी, उसको आप कहीं उन सेविंग्स को कहीं पर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्ट जब करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उन सारे ऑप्शंस को हम कहते हैं सिक्योरिटीज। कौन कौन सी सिक्योरिटीज है हमारे पास ऑप्शन में जिसमें हम अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं? सो इस सिक्योरिटीज को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, एक सिक्योरिटी इंक्लूड करती है इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर्स। आपने सुना होगा जैसे रिलायंस का एक शेयर है 2000 रुपीज का है, टीसीएस का है अगर 3000 का है, तो शेयर्स होते हैं ये कंपनी के। बॉन्ड्स जो आपके गवर्नमेंट इशू करती है, बॉन्ड्स जिसमें आपको एक पर्टिकुलर प्राइस मिलता है आफ्टर सम टाइम टेन्योर के बाद। अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज, इसको हम डिटेल में करेंगे इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। सो शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट एंड राइट्स इन दी सिक्योरिटीज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या वो ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए? आपके पास शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इन सब में आप अपनी सेविंग को लगा सकते हैं in order to make your investment. Security is also called financial instrument. It is a claim on the issuer's future income. So जैसे कंपनी ने आपको शेयर प्राइस दिया है, शेयर दिया है एक, सो आपका वो क्लेम बनता है उनकी जो भी फ्यूचर इनकम होगी उस पे। वैसे ही किसी गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड इशू करा है तो आपका क्लेम बनता है। सो इट इज अ क्लेम ऑन द इशूअर फ्यूचर इनकम, जिसने इशू करा है आपको वो इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट अगर हम और डेफिनेशन की बात करें तो सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट बाय वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज थ्रू अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं इनको, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट अ क्लेम टू द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी सम टाइम इन द फ्यूचर। सो जो आपको शेयर मिला है उसमें आपका क्लेम बनता है, जो भी अर्निंग्स होगी कंपनी की। आपको बॉन्ड है उससे जो भी अर्निंग्स होगी उसमें एक क्लेम बनता है आपका। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड a claim to the payment of a sum of money sometimes in future। और पीरियोडिक पेमेंट, जैसे बॉन्ड में आपको पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा आपको कि एवरी, जैसे इंटरेस्ट रेट है उसका 8%, एफडी फिक्स डिपॉजिट में आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है। सो पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकती है। फिर हम कहते हैं कि अब सिक्योरिटीज तो हमें पता चल गया ये सिक्योरिटीज हैं, तो सिक्योरिटीज मार्केट भी होता है जिसका हम फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। सो सिक्योरिटीज मार्केट is a place where buyers and sellers of security enter into transaction to purchase and sell shares, bonds and debentures। So एक market place है जहाँ पर buyer and sellers they interact and they enter into transaction किस लिए? To purchase and sell shares, bonds and securities। Further, it perform an important role of enabling corporates या entrepreneurs to raise resources। So कोई भी कंपनी अगर रिसोर्सेज रेज करना चाहती है सो वो सिक्योरिटीज मार्केट से कर सकती है। वो अपने शेयर्स आपको इशू करेगी और आपसे मनी कलेक्ट करेगी। सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडियल रिसोर्सेज जैसे रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर्स ट्रांसफर करती है रिसोर्सेज इन्वेस्टर्स से टू अदर्स लाइक कंपनीज जो है हु हैव अ नीड फॉर देम, क्योंकि कंपनीज को आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने नए प्लांट्स लगाने हैं, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज दैट इज मनी फ्रॉम दोज हु हैव आइडियल, जिनके पास नॉर्मल इन्वेस्टर है, जिनके पास आइडियल रिसोर्सेज है, टू दोज जैसे कंपनीज को। सो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल्स फॉर रीएलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो और डेफिनेशन अगर हम देखें तो मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल हु हैव एन एक्सेस ऑफ अवेलेबल फंड टू पीपल हु हैव अ शॉर्टेज। सो कंपनीज जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, उनके पास शॉर्टेज है, और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक्सेस में वो फंड है, तो वो ट्रांसफर फंड कर सकते हैं फ्रॉम दोज इन्वेस्टर टू दोज कंपनीज। फाइनेंशियल मार्केट इज द इंटरफेस between a large number of buyers and sellers of the financial product, so it is also an interface। जो प्राइजेस होते हैं
प्रोडक्ट्स के, चाहे वो शेयर है, बॉन्ड्स है, दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई विद इन द मार्केट। सो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। फिर हम आते हैं एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट। सो आपको बताया था फाइनेंशियल सिस्टम में देयर आर रेगुलेटर्स, देयर आर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, हमने डेफिनेशन कवर कर ली। अब हम कर रहे हैं टाइप्स क्या रहते हैं। सो टाइप्स आपके फर्दर यूनिट्स में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे हम। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। सो सिंस देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, आपके पास शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड है। सो देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। So broadly speaking, financial market can be classified. First हम classification कर सकते हैं maturity of financial instrument. क्या उसकी maturity है उस instrument की? So money market and capital market. Money market short term के लिए, capital market long term के लिए। और काइंड ऑफ सिक्योरिटी, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है वो, किस तरह का सिक्योरिटी है। तो अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है तो डेट मार्केट कहते हैं उसको, अगर वो शेयर है तो उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, और अगर वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है तो उसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। सो दीज आर दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स की? फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय चैनलाइजिंग फंड from people who do not have a productive use for them to those who do. So productive use companies, entrepreneurs and investors से वो पैसा companies तक पहुंचाता है, and that is very crucial for promoting greater economic efficiency. Indeed, well-functioning financial market are a key factor in producing high economic growth. So that is one of the important importance of financial market is high economic growth में ये help करता है. And poorly performing financial market are one of the reason that many countries in the world remain desperately poor. So this country का फाइनेंशियल मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि वो इतना अच्छी ग्रोथ नहीं होगी उस कंपनी की। फिर पार्टिसिपेंट्स की बात करें अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो एक तो होते हैं इशूअर्स जो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं। अब वो चाहे आपका कोई भी कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, एंड इंटरमीडियरीज होते हैं जो एक बीच में रोल प्ले करते हैं जैसे मर्चेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स। सो इंटरमीडियरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो तीन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट कवर करा, उसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर इट्स क्लाइंट्स एंड मेंबर्स। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें तो आरबीआई, आपका म्यूचुअल फंड, आपके इंश्योरेंस कंपनीज, आपके कमर्शियल बैंक्स, उसमें चाहे प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज जो होते हैं, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर व्हाट मेक फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क। तो फाइनेंशियल मार्केट के काम, पूरा जो उनका काम होता है उसको करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So without them, financial market would not be able to move funds from people who save to people who have productive investment opportunities. So financial institutions बहुत important है in order to transfer the funds from investors to companies. Financial institutions thus play a crucial role in improving the efficiency of the economy. बहुत crucial role play करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ कंडक्ट, दैट इज एक चैनल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेट सेवर्स टू नेट बायर्स, बोरोवर्स। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सो पहला हमारा जो कैटेगरी है उसे कहते हैं मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरी है कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन। मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस में आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक्स। सो ये सारे हमारे फर्दर आप देखेंगे सिलेबस में तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ने। डेवलपमेंट बैंक्स जैसे सिडबी, नबार्ड, इनको हम पढ़ेंगे, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं,
उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। आरबीआई का रूल क्या है, क्या फंक्शंस है, ऐसी कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन हो, रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं, एनबीएफसी। सो दो आपकी क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी बाइफरकेट कर सकते हैं। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो पे यू इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट, जैसे आपके सारे बैंक्स, वो आपको एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो। उसके बाद नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते एंड जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे होते हैं आपके नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। चाहे आपके अंडरराइटिंग फर्म जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी कहते हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड्स हो। सो ये एक और बाइफर्केशन हो गया टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। एंड अगर हम थर्ड बाइफर्केशन की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कुछ होते हैं विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका मतलब वो किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से रेगुलेट होते हैं, जैसे सेबी, आईआरडीए इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के लिए जो होता है, एंड पीएफआरडीए पेंशन फंड के लिए। सो एक तीन तरह के बाइफर्केशन हो गए। सो फर्स्ट बाइफर्केशन आपने देखा, मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन। सेकंड, डिपॉजिटरी, नॉन डिपॉजिटरी, एंड थर्ड इज which are regulated by Reserve Bank of India, which are not regulated by Reserve Bank of India. So अगर हम रिकैप देखें तो इंट्रोडक्शन में पहले आप फाइनेंशियल सिस्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है। फिर फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या होता है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को लिंक एक प्रोवाइड करना उनके बीच में। और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया होता है, जिन्हें हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। अब वो चाहे आपका शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं। फिर उसके बाद दो ब्रॉड टर्म है, फाइनेंशियल मार्केट्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था इस सब्जेक्ट के लिए। एंड जो एक छोटा सा असाइनमेंट आपको करना है, आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है फाइनेंशियल मार्केट्स पे, क्या फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। एंड एक शॉर्ट नोट आप लिखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इसको आप हैंड रिटन करेंगे एंड देन आफ्टर द क्लास यू वुड रिसीव अ गूगल फॉर्म लिंक वेयर यू कैन अपलोड योर असाइनमेंट शीट. So that is all for today, and thank you so much.